Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about anatomy and physiology. Okay, so here we are starting a new subject, that is what? Human anatomy and physiology. Okay, so this subject is very important for you all. Okay, so generally question occur in our mind, what is anatomy and what is physiology? Okay, so before moving forward, you just remember one thing. If you want to learn the meaning of any word, then what you need to do, the important thing is that you need to understand the cutting of the word. Okay, or we can say जैसे कि हिंदी में बोला जाता है संधि विच्छेद. Okay, so what we are doing here, we are doing what? Cutting of the word, and we are able to understand the meaning. So first we are moving on anatomy. So what is anatomy? Anatomy क्या है? Okay, so यहाँ पर आप देखिए, we are cutting this word, we are dividing this word. Okay, ana plus tomy. Okay, ana plus tomy. Okay, ana plus tomy. Clear? So what is the meaning of ana? Ana means up. Ana means up. Okay, and tomy means process of cutting. Process of cutting. Okay, clear? Clear everyone? So anatomy is what? Process of cutting, but process of cutting of for what? So here we are doing what? We are cutting the organs. Why we are cutting the organs? Because we want to study the organ. Okay, so anatomy is what? Basically it is a study of body organs by cutting. Okay, so anatomy is what? Study of body organ. Study of body organ structure. Okay, clear? So this is the definition of anatomy. What? Study of body organ structure. So how we do the study of body organ structure? We are doing this by dissection. We are doing this by dissection. Okay, so this is what? Dissection. Okay, so again we are dividing this word dissection. Okay, so look at here, dis plus section. Okay, dis plus section. Okay, what is this? What is the meaning of dis plus section? Dis means apart. Okay, this means apart, and section means act of cutting. Okay, act of cutting. Okay, so with the help of dissection, of body organ, we are doing the study of body organ structure. Okay everyone, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनाटॉमी. यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी क्या है. जितने भी बॉडी ऑर्गन है उनकी बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी ही क्या है? एनाटॉमी. और एनाटॉमी हम किसकी मदद से समझ पाते हैं? डाइसेक्शन की मदद से समझ पाते हैं. जितने भी बॉडी ऑर्गन है उनका हम डाइसेक्शन करेंगे, उनकी हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर नजर आएगी उससे हमें समझ में आ जाएगी कि उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर क्या है. ओके, नाउ मूविंग ऑन द व्हाट इज फिजियोलॉजी. ओके, अगेन फिजियोलॉजी को यहाँ पर दो वर्ड में डिवाइड करेंगे. वी आर डिवाइडिंग फिजियोलॉजी. ओके, फिजियो प्लस लॉजी. ओके, फिजियो प्लस लॉजी. Okay, so what is the meaning of physio? Physio means nature. Physio means what? Nature. Okay, clear? And what is the meaning of logy? You all know logy means to study. Logy means to study. Okay, so study of nature. अगर हम इस definition से देखें तो इससे हमें क्या पता लगता है कि physiology क्या है? Study of nature. But nature means what here? यहाँ पर nature का मतलब क्या है? What is the meaning of nature here? So nature meaning here is what? It is in the relation with the body organ. It is in the relation with the body organ. Okay, so body organ की nature क्या है? Means what is the function of body organ? What is the function of body organ? So basically physiology is what? To study the body organ function, to study the function of body organ. Okay, so I am writing here. Okay, this is known as a physiology. This is known as a physiology. Clear everyone? So hopefully you are able to understand the meaning of physiology. Okay, physiology क्या हो गई? फंक्शन, किसी भी बॉडी ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्या उसका कार्य है. ओके, सो नाउ जनरली व्हाट है, जैसा किसी भी ऑर्गन को फंक्शन करना होता है वैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है. ओके, क्या मैंने आप लोगों से कहा कि अगर किसी भी बॉडी ऑर्गन को क्या फंक्शन करना है. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल हियर.
अगर मेरे ईयर को जो है यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर, फंक्शन क्या है इसका, सुनना, ओके, हियरिंग इज द फंक्शन, ओके। नाउ अगर इसका फंक्शन हियरिंग है तो इसकी ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, मीन्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर द हियरिंग पर्पस। जैसी इसकी स्ट्रक्चर होगी मतलब ये सुनने के लिए हेल्पफुल होगी, ओके। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ जानी चाहिए कि किसी भी ऑर्गन को जो भी फंक्शन करना है उसकी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ओके। इससे आप समझ जाएंगे कि जो भी बॉडी ऑर्गन का फंक्शन है, जनरली आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप लोगों को हर एक बॉडी ऑर्गन का थोड़ा बहुत फंक्शन तो पता ही है, ओके। तो उसी से आप समझ जाइए कि उस बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होगी। आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स, ओके। फ्यू एग्जांपल यहाँ पर देखिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ यू आर लुकिंग ऑन द स्कल्स, ओके, स्कल और फिंगर को हम देखते हैं, लुकिंग ऑन द स्कल एंड फिंगर्स, ओके, क्लियर। सो स्कल और फिंगर को अगर आप देखें तो क्या होगा, स्कल इज बेसिकली ए रिजिड स्ट्रक्चर। स्कल जो है हमारा, दिस इज द स्कल एरिया, ओके। सो स्कल इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, ओके, रिजिड स्ट्रक्चर, क्लियर। क्यों ये रिजिड है, क्योंकि इसको क्या करना है, इट वांट टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ओके। ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी इंजरी से। दैट्स व्हाई स्कल स्ट्रक्चर इज व्हाट, अ हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर, ओके। सो इसी से आप समझिए, क्योंकि इसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, रिजिड है। इसमें बहुत ज़्यादा इसकी जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन द फिंगर्स, ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस हियर। यहाँ पर आप देखिए फिंगर्स जो हैं इसकी बोन्स में क्या है, लूजली कनेक्टेड है, लूजली जॉइंटेड है, ओके। सो बोन्स ऑफ फिंगर्स आर लूजली जॉइंट, ओके, क्लियर। क्यों, क्योंकि फिंगर्स को बहुत ही फाइन वर्क करना है, फिंगर्स को क्या करना है, बहुत ही फाइन वर्क करना है, इसीलिए यहां पर जो फिंगर्स में जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही लूजली जॉइंट है, क्लियर। देन सेकेंड एग्जांपल आई एम गिविंग यू हियर, इट इज व्हाट, इफ यू आर लुकिंग ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। अगर आप यूरिनरी ब्लैडर को देखें, यूरिनरी ब्लैडर, ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर को देखें, सो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैविटी, ओके। यहाँ पर जो है इसकी कैविटी जो है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ओके। कैविटी जो है, कैविटी इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूरिन कलेक्ट होगा उसको कहाँ पर नहीं जाने देना है, उसको पेल्विक कैविटी रीजन में नहीं जाने देना है, ओके। बट उसकी जो वॉल होगी, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है यहाँ पर, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर, वॉल जो है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि फ्लेक्सिबल यूरिन को जब हम जितना भी यूरिन कलेक्ट होगा वो धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, ओके। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा, तो कलेक्ट करेगा तो यूरिन जो है जब इकट्ठा होता जाएगा तो वॉल जो है धीरे धीरे एक्सपांड करेगी, ओके। वॉल क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, क्लियर। अगर वॉल एक्सपांड करेगी तो अगर वॉल के अंदर फ्लेक्सिबल होने की क्वालिटी ही नहीं होगी तो वॉल एक्सपांड नहीं कर पाएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर को दोनों ही काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं, एक तो कैविटी को स्ट्रांग भी रखना है, यूरिनरी ब्लैडर की वो जो वॉल है उसको स्ट्रांग भी रखना है ताकि उसमें से जो यूरिन कलेक्ट हुआ है वो कहीं पेल्विक कैविटी रीजन में ना चला जाए, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ओके। तो ऑर्गन की स्ट्रक्चर वैसी ही है जैसी कि हमें नीडेड है, क्लियर एवरीवन। Now another example I am giving you here is what, if you are looking on the lungs, okay, if you are looking on the lungs, so the walls of lungs, जो lungs की cavity है, lungs alveoli region है, so alveoli जो है, ओके, एल्वियोलाई की जो वॉल है वो बहुत ही थिन है, एल्वियोलाई की जो वॉल है वो क्या है, थिन है। वाई इट इज थिन, ओके, वाई इट इज थिन, जनरली एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन टू यू पीपल, वाई इट इज थिन, just because alveoli need to do the gaseous exchange. What it need to do, gaseous exchange. क्या इसका फंक्शन है, gaseous exchange, ओके। गैसियस एक्सचेंज इसको करना है। गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, अगर वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक होगी तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बट इफ इट इज वेरी थिन, इट इज वेरी थिन, देन गैस मूवमेंट इज पॉसिबल, गैस मूवमेंट इज पॉसिबल। तो यहां से इन तीनों ही एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होती है उसको कैसा फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द नीड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब्जेक्ट की जरूरत क्या पड़ गई, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ गई। ओके, सो अभी यही हम चीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी नीडेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जनरली आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही नहीं होती तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। ओके, ये सब्जेक्ट हमारा कम हो जाता। ओके, बट क्या नीड है इसकी, क्यों आखिर आपके ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो एनाटॉमी मतलब कि बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होगी, तो अगर कोई भी डिजीज होगी उस पर्सन को, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके किस ऑर्गन में डिजीज है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट टू आइडेंटिफाई द डिजीज, टू आइडेंटिफाई द क्लियर। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को डिजीज हो गई है तो उस डिजीज में उसके कौन से बॉडी ऑर्गन फंक्शन जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। ओके, सो टू आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ओके, कंडीशन क्लियर एवरीवन। सो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन कौन से फंक्शन चेंज हो गए, मतलब कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर ईयर का फंक्शन सुनना है और किसी ने सुनना कम कर दिया है तो ये फंक्शन कम हो गया ना उसका। ओके, तो ये क्या चेंजेस हुए ये हम पता करेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट अगर किसी को डिजीज के फंक्शन चेंज हो गए, डिजीज कंडीशन में उसकी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन चेंज हो गए हैं, ओके, तो हमें उसको वापस से ठीक भी करना होगा। वी वांट टू करेक्ट इट एंड मिटिगेट द डिजीज, हमें डिजीज को मिटिगेट भी करना है। ओके, सो इन दैट कंडीशन हाउ टू करेक्ट द डिसऑर्डर, हाउ टू करेक्ट द डिजीज, ओके, और वी कैन से मिटिगेट द डिजीज कंडीशन। क्लियर? सो यहां पर डिजीज को किस तरह से ठीक करना होगा। ओके, एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द ड्रग टारगेट। ओके, सो यहां पर ये, क्योंकि अगर हमें फिजियोलॉजी फंक्शन पता लग जाएगा कि किस पॉइंट पर कौन से पूरा साइकिल के अंदर कहां पर, अगर मैं यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं, सपोज मैं यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं, तो यूरिन फॉर्मेशन में कौन से प्रोसेस में चेंज आया है, तो हम केवल उसी प्रोसेस को चेंज करें। ओके, तो हम ऐसी ही ड्रग डिस्कवर करें। ओके, सो इट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ए ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। ओके, सो वी कैन से यहां पर टारगेट ड्रग डिस्कवरी, टारगेट डिस्कवरी में क्या है, हेल्पफुल इन टारगेट डिस्कवरी, हेल्पफुल इन टारगेट ड्रग डिस्कवरी। क्लियर एवरीवन? And another one is what, if we know about the anatomy and physiology, अगर हमें anatomy and physiology पता है तो how we remain the healthy, हमें ये पता रह जाएगा कि हम किस तरह से healthy रह सकते हैं। क्लियर? सो healthier life के लिए भी, healthy life के लिए भी ये anatomy and physiology की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ के लिए भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज अगर हमें होगी तो ही हम हेल्दी रह पाएंगे। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नीड हो गई। जो नीड है वही इसका क्या हो गया, स्कोप हो गया। ओके, क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आज के इस जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एनाटॉमी का मीनिंग बताया एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड नीड आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया है। इवन किसी को कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। Hello everyone, discussing the question number 1, what is anatomy? A, to study the body organ function, B, to study the body organ structure, C, to study the analgesic effect on body, and D, none of these. Question number 2, what is physiology? A, to study the body organ function, B, to study the body organ structure, C, to study the analgesic effect on body, D, none of these. Question number 3, why anatomy and physiology needed? A, to identify the disease, B, to identify the physiological changes in disease condition, C, it is helpful in drug discovery process, D, all are correct. So I have already given answer of all of these question in my lecture.
If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box. Okay, so like the video, share the video and subscribe the channel.